عمل کے رستوں کی جو راہ ہے، جو راہ عمل ہے، اس میں انسان کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی پہننا ہے، اور اس کی اور بھی کچھ معاشی ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرتا ہے، اور کچھ ذرائع وہ اختیار کرتا ہے جس سے کہ اس کی معاشی اور روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکے۔ دین کا یہ مزاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ خوبصورت حصہ ہے کہ جب بھی آپ تگ و دو کریں، کوشش کریں، تو اس میں اپنی خودداری اور عزت نفس کا ضرور خیال کریں۔ کبھی بھی ہاتھ پھیلانا، کبھی بھی کسی شخص سے مانگنا، دنیا داروں سے سوال کرنا اور اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی جیب پر نظر رکھنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں۔ غیرت مند رہ کے، خوددار رہ کے، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج بنا کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ مالک کی تقسیم ہے کہ اس نے کس کے لیے کتنا پسند کیا۔ ہمارے لیے جتنا اس نے پسند کیا وہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ ہمیں جس حال میں اس نے رکھا وہی حال ہمارے حق میں اچھا تھا۔ ہم نہیں جانتے، ہمارا اللہ، ہمارا مالک جاننے والا۔ خودداری سے، عزت نفس سے باوقار انسان جنم لیتے ہیں، خوبصورت معاشرے پیدا ہوتے ہیں، اور جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنی عزت نفس کو بھول جاتا ہے اور اپنی جیب بھرنے کی کوشش میں وہ اپنے وقار کا سودا کرنے لگتا ہے، اور جب وہ مال، دولت، اقتدار، شہرت کی ہرس اور ہوس کے لالچ میں وہ اخلاقیات کو ہی بھولنے لگتا ہے، تو پھر اس نے کچھ کمایا نہیں، پھر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ خودداری سے رہیں، عزت نفس سے رہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں سے میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں، یہ آیات اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں مستقل حاضر ہو گئے تھے تعلیم دین کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا جس سے پورے وجود کو ڈھانپا جا سکے، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اور وہ حدیث بھی چمکتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 کے قریب صحابہ صرف اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سے اسی ایک پیالے پر وقت گزر رہا تھا۔ اس قدر زیادہ آزمائش تھی، اس قدر زیادہ تکلیف تھی، لیکن ان کی خودداری اس طرح کی تھی، ان کا وقار اس طرح کا تھا، ان کی قناعت اس طرح کی تھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا۔ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، انہیں جھکنا پڑے، انہیں اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے۔ وہ جھکتے نہیں، وہ گڑ گڑا کر نہیں مانگتے کہ انہیں کشکول طلب دراز کرنا پڑے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگوں کا کیا حال ہے۔ لوگ صرف مال بڑھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن لوگ اپنی خودداری کا سودا کرتے ہیں، عزت نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، چند روپوں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، چند ہزار کی خاطر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، چند لاکھ کی خاطر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، چند کروڑوں کی خاطر لوگ ملتوں کا سودا کرتے ہیں، لوگ دین کے راز بیچتے ہیں۔ لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھوک بڑی تھی، غربت ان کے پاس تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی سے اس طرح سوال نہیں کرتے تھے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، بلکہ وہ وقار کے ساتھ رہتے تھے، خودداری کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اپنے شب و روز میں وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کریم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اپنے مالک کے ساتھ ان رویوں کو وہ رکھتے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے قناعت کو پسند کیا ہے۔ یہ ٹینشن فری ہونے کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، سکون کی،
اور बहुत ज़्यादा बिखरे हुए जो मेरे ख्यालात हैं और बहुत जो हर वक्त नफ्स की दौड़ है, इससे मैं बच जाऊं, तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नुस्खा कीमिया दिया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह इज़्ज़त क्या है? हर आदमी चाहता है ना कि मैं इज़्ज़त से रहूं, वकार से रहूं। इज़्ज़त क्या है? तो महबूब ने फरमाया, जो अल्लाह ने तुझे दिया है उस पर कनात इख्तियार कर, अल्लाह तुझे इज़्ज़त अता फरमा देगा। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ज़िल्लत क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लालच ना करना, लालच ना करना, हिर्स हवस से बचना, वरना तो जलील हो जाएगा। लालच में ज़िल्लत है, कनात में इज़्ज़त है, थोड़े पर गुजारा करें। और क्या खूबसूरत इरशाद है महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। करीम महबूब फरमाने लगे, तुम अल्लाह के थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। तुम उसके थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, जो उसने तुम्हें दिया है तुम उस पर राजी हो जाओ। कनात इख्तियार करो, खुददारी से रहो, हाथ ना फैलाओ, कशकोले तलब कभी दराज ना करो। दुनिया में सबसे कमजोर आदमी वो होता है जो मांगता है, और दुनिया में कोई और पेशा बुरा नहीं, कोई पेशा, जूते गांठना भी बुरा नहीं, सड़क पर झाड़ू दे के रोटी कमाना भी बुरा नहीं है, बर्तन मांज कर खाना खा लेना भी बुरा नहीं है मेरे भाई, मजदूरी कर लेना, सर पे छाबड़ी रख के फल बेच लेना भी बुरा नहीं। एक ही पेशा बुरा है, वो है हाथ फैलाना, वो है मांगना, वो है लोगों के सामने कशकोले तलब दराज करना, वो ये है कि दुनियादारों से मांगना, दुनियादारों से, लोगों के सामने हाथ फैलाना। किसी इशारे पे ब्रेक लगती है, 20 लोग सवाल करने वाले दौड़ आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया गया है, वो गाड़ियों से चिमटे रहते हैं, उनको ये तरीका बतलाया गया है कि तुमने किस तरह करके सामने वाले की जेब से पैसे निकालना है। काश उन्हें मेहनत की आदत डाली जाती, उन्हें सिखाया जाता, उन्हें गैरतमंदी सिखाई जाती, खुददारी और इज्जत नफ्स का पैगाम दिया जाता, उन्हें बचपन में ही मेहनत करने का आदी बनाया जाता। वो जद्दोजहद करते तो वो थोड़ा रिस्क भी कमा के लाते, तो अर्श का मालिक उसमें बरकत पैदा फरमा देता, वो खूबसूरत बन जाता, वो मीठा हो जाता। भाइयों, खुददारी, इज्जत नफ्स मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फेल है। कभी भी किसी भी मकाम पर अपनी गुर्बत को भी रुसवा ना होने दे, अपनी फकीरी को भी दागदार ना होने दे। ये सफ़ेद चादर होती है फ़क्र की, इस पे जैसे ही राज खुलते हैं ना, जैसे ही हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर ने एक सूबे का गवर्नर बनाया था, तो हज़रत सैयदना उमर फारूक ने उस सूबे के एक शख्स के ज़िम्मे लगाया कि वहाँ के फ़कीरों की, गरीबों की लिस्ट तो बना के दो, कुछ माल आया है तो मैं गुरबा में बांटना चाहता हूँ, तो लिस्ट बना के भेजो। तो वज़ीर ख़जाना ने वहाँ जब लिस्ट बना के भेजी तो तीसरे चौथे नंबर पर गवर्नर साहब का भी नाम था। हमारा गवर्नर भी गरीब है, 3 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता है, गरीब है गवर्नर। जब लिस्ट हज़रत उमर के पास गई तो आपने 600 दिनार गवर्नर साहब को भेजे और साथ कहा कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि आप इतने मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं। जवाब में हज़रत सईद जब वो कासिद लेके पहुंचा ना वो माल, तो कहता मैंने 600-700 दिनार दरवाजे पर उन्हें दिए, दरवाजे पर, और जनाब सईद इब्ने आमिर दरवाजे पर ही बैठ गए, अंदर नहीं गए। और एक शख्स को कहने लगे जरा आवाज लगाओ मेरे सूबे में जो गरीब लोग हैं वो जल्दी से पहुंचे, अल्लाह ने मुझे माल दिया है। फिर वो सारा माल वहीं बांट दिया। तो वो खाता आपने पढ़ा ना जिसमें हजरत उमर ने लिखा था, मुझे तो पता ही नहीं था आप गरीब हैं। तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर आपका हदिया आया था, मैंने कबूल कर लिया, इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन जरा शफकत करके उस शख्स का नाम तो बताया जिसने मेरा राज खोला है। ये तो मेरा और मेरे मालिक का मामला था कि मैं गरीब हूँ या कमजोर हूँ, ये कौन था जिसने मेरा राज खोला? मैंने अपनी गुर्बतें छुपा के रखी हैं, मैंने अपनी फकीरियाँ छुपा के रखी हैं। मैं तो जब भी बात करता हूँ या खुदा से करता हूँ या जब गर्दन झुका के दुरूद पढ़ता हूँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से करता हूँ। मैं तो अपने महबूब से बात करता हूँ, मैं तो मुस्तफ़ा करीम के वसीले से अपने रब के हुजूर अपनी आहुजारियाँ पेश करता हूँ। मैं तो नहीं सवाल करता दुनियादार, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं? ये तो हाथ जब फैलाए जाते तो इज्जतों के जनाजे निकलते। ये तो लोग दुनियादार देते कम है, चतलाते ज्यादा हैं।
यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है। खुददारी से रहें, वकार से रहें, थोड़े पे गुजारा करें, अपने कच्चे मकान से प्यार करें, अपने छोटे से आपका जो जरिया आमदन है उस पर अपने आप को मैनेज करना सीखें। आप खुददार रहेंगे, आप बावकार रहेंगे। हाँ, ताल्लुकात भी रखने हैं तो अपने जैसे लोगों से रखें। गरीबों को भी शौक हो गया है कि बड़ों से रिश्ता होना चाहिए, बहुत बड़े आदमी के साथ तस्वीर आनी चाहिए, हमारा बड़े किसी रेस्टोरेंट में किसी बहुत सेठ के साथ हमें रोटी खाने चाहिए। इस शौक से बाहर निकले, अपने जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, अपने मामलात में अपने आप को मैनेज करें, कभी भी हाथ ना फैलाएं। हजरत सौबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े महबूब गुलाम है। ये वही हैं जो रोया करते थे कि या रसूलल्लाह, जब घर में परेशान होता हूँ तो ज़ियारत कर लेता हूँ, तो हुजूर अगर जन्नत में दीदार ना हुआ तो क्या करूँगा? तो फिर अर्श के मालिक ने खुशखबरी भेजी थी कि महबूब सौबान से कह दो, जो तेरी इताअत करेंगे मैं जन्नत में भी अपने करीम महबूब का पड़ोस अता करूँगा। वही हजरत सौबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैं हुजूर की बारगाह में तन्हा बैठा था। जब मुहिब और महबूब की तन्हाई हो, आशिक और माशूक की तन्हाई हो, पीर और मुरीद अकेले बैठे हो, और उस वक्त अगर शेख कभी मौज में हो, मोहब्बत में हो, और वो कहे कि तुझे खास बात ना बताऊं, कोई अहम बात ना तेरे साथ करूं, कहते उस माहौल में मैं हुजूर के साथ तन्हाई में बैठा था तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत की नज़र से देखा, बड़ी मोहब्बत की नज़र से। तेरी एक नज़र का कमाल है और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। हुजूर ने मोहब्बत की नज़र से देखा और फरमाया, सौबान, मेरे साथ एक वादा तू कर और तेरे साथ एक वादा मैं करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे इतने नसीब कि मैं आपके साथ बात करूं, आप मेरे साथ करें। तू अमीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ। हुजूर ने फरमाया, एक वादा तू कर और एक वादा फिर तेरे साथ मैं करता हूँ। मुहिब और महबूब की बात। या रसूल अल्लाह, हुक्म करे। कहते हैं मेरे दिल की कलियां खिल रही थी और मैं इस मौका पर अपने आप को दुनिया का सबसे खुशबख्त इंसान जान रहा था। हुजूर ने फरमाया, तू मेरे साथ वादा कर, मैं तेरे। हुजूर हुक्म करे। मुझे यूं लगता है कि इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिफतों और बुलंदियों पे अपने नसीबों को महसूस कर रहा हूँ। हुजूर हुक्म करे। क्या खूबसूरत जुमले हैं, क्या अंदाज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सौबान, तू मेरे साथ वादा कर, तो जिंदगी में किसी से सवाल नहीं करेगा, तू किसी दुनियादार मालदार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। तू वादा कर, तू सवाल नहीं करेगा। कहते मैंने कहा, या रसूलल्लाह, कभी नहीं करूंगा। तो महबूब ने फरमाया, तू मेरे साथ ये वादा कर और मैं तेरे साथ बगैर हिसाब किताब जन्नत का वादा करता हूँ। फिर अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करेगा। तूने कशकोले तलब नहीं फैलाना, हाथ नहीं फैलाना, दुनियादारों से नहीं मांगना, सेठों की जेबों पर नजर नहीं रखनी। तुमने कभी भी नहीं देखना कि सामने वाले से कुछ तलब करो। तुमने जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, भाई, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। अपने मकान, अपने कच्चे मकान से प्यार करके तो दे, यूं लगेगा कि सबसे बड़ा महल यही है। तो अपने गरीब माँ बाप से बहन भाइयों के बीच बैठ के तो देख, तो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत वक्त गुजारने वाला पाएगा। तो अपने ही दोस्तों की महफिल को आरास्ता करके देख, तुझे यूं लगेगा कि दुनिया की सारी खुशियां सिमट कर तेरे ही दामन में आ गई हैं। तू क्यों देखता है, तू क्यों देखता है किसी के पक्के मकान की तरफ? अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देश अपने दिया बल्ला नालो, तुम्बे ला ला खाइए, एमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। अपने पे गुजारा करें, जो आपके पास है उसी पे वक्त गुजारें, उसी के साथ अपने आप को लगाएं। अपनी जो खूबसूरत दुनिया आबाद की है उसमें खुश रहना सीखें। कभी भी कशकोले तलब दर। हजरत हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं हाजिर हुआ नबी करीम की बारगाह में, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर हुआ। तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, को नसीहत कर दे। तो महबूब ने फरमाया, हकीम, कभी किसी से सवाल न करना। कितना पसंद है महबूब को ये फिक्रा।
कितना पसंद। कभी किसी दुनियादार से सवाल, एक है अल्लाह वालों से सवाल, जो अल्लाह वालों से सवाल है वो तो गोया अल्लाह ही से सवाल है, वो तो मामला अलग है। लेकिन फरमाया दुनियादारों से सवाल ना करना, सेठों से, महाराजों से, दुनियादारों से कभी ना मांगना, उनसे सवाल ना करना। हजरत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा वादा रहा, मैं कभी नहीं मांगूंगा। हजरत हकीम बिन हिज़ाम फरमाते मैं कभी घोड़े पे होता था ना या ऊंट पे, तो मेरे हाथ से मेरा कोड़ा भी गिर जाता था ना जमीन पर, तो मैंने कभी ये भी किसी से सवाल नहीं किया था कि मुझे पकड़ा दो। मेरे हाथ से कभी मेरा कोड़ा, यूं समझ ले कि मेरा असा, मेरा डंडा, मेरी छड़ी, घोड़े पे बैठे हुए कभी, ये सहाबा की नबी पाक के साथ वफा का आलिम है। फरमाते हैं कि ये आलम था हमारा कि कभी मेरे हाथ से मेरी छड़ी गिर गई, मेरा दुर्रा गिर गया, मेरा कोड़ा गिर गया, कभी कभी किसी से सवाल नहीं किया कि मुझे पकड़ा दो। फरमाते हैं कि दिन मेरे हाथ से मेरा कोड़ा गिर गया, मैं ऊँट पे बैठा था, कुछ बुढ़ापा आ गया था, तो मैं तकलीफ के साथ एक दफ़ा नीचे उतरा, नीचे उतर करके फिर मैंने उसे उठाया, और उठा कर जब मैं दोबारा घोड़े पे बैठने लगा तो बुढ़ापा था, ज़रा मुश्किल महसूस हुई। मेरा गुलाम पास खड़ा था, कहने लगा हुजूर ये कोई काम था जिसके लिए आप नीचे उतरे और उतर करके फिर आपने कोड़ा उठाया और दोबारा आप बैठ रहे हैं ऊँट पर, मुझे हुक्म कर देते मैं पकड़ा देता। तो फरमाते मैं मुश्किल से ऊपर चढ़ गया, तो मैंने उसे कहा यार थोड़ी सी तकलीफ तो ज़रूर हुई है, थोड़ी परेशानी तो ज़रूर हुई है, लेकिन अपने महबूब से वादा किया था, थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई है पर रूह को सुकून बड़ा मिला है, वजूद को थोड़ी तकलीफ हुई है पर दिल को बड़ा सुकून आया है। कभी भी न देखें दाएं बाएं, कभी भी गौर न करें किसी के पास क्या है, कोई किधर जा रहा है, कोई किस तरफ लगा हुआ है। खुददारी से रहें, इज्जत नफ्स से रहें, वकार के साथ रहें, अपने मामलात को हमेशा अपने मालिक की बारगाह में पेश करें। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने मामलात अपने रब की बारगाह में अर्ज करेगा, जल्दी या देर से अल्लाह उसे दुनिया से बेनियाज कर देगा। लेकिन जो दुनियादारों के सामने अपने मामलात पेश करेगा, जगह जगह रोना रोएगा अपनी गुर्बतों का, फरमाया अल्लाह उसे कभी भी गनी नहीं करेगा, कभी भी गनी नहीं करेगा। आज ये बात आम हो रही है, लोग मांगते हैं, और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सिर्फ दौलत बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करे, हाँ कभी कोई मजबूरी बन गई, किसी से कभी मदद लेनी पड़ गई, इंसान तकलीफ में आ गया, बात अलग है, कभी कर्जे हंसना का मौका आ गया, बात अलग है। लेकिन सिर्फ दौलत बढ़ाने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा एक नया प्लाट और खरीदने के लिए, जो दौलत बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करे, मांगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत के दिन वो आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी, खराशों वाला चेहरा होगा। जो सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए हाथ फैलाता है, मजबूरन नहीं, सिर्फ दौलत कमाने के लिए जमा करता है, इससे बचें, खुददारी के साथ रहें, वकार के साथ रहें। और बात अमीरों की खुददारी की तो हो ही रही है, लेकिन मैं असल बात कर रहा हूँ गरीबों की खुददारी की। गरीब बावकार बने, वो बावकार बने ताकि फिर कोई किसी गरीब को खरीद ना सके, फिर कोई किसी इंसान का रेट ना लगा सके। हातम ताई से किसी ने पूछा था, शेख सादी रहमतुल्लाह लिखा है कि हातम ताई बड़ा सखी है, उसकी सखावतें दुनिया में मारूफ है। किसी ने उससे पूछा था कि हातम ताई तो बड़ा सखी है, कभी अपने से भी सखी आदमी देखा है? उसने कहा देखा था। कहा कब? कहने लगा एक दफा मैंने सारे शहर की दावत पकाई, हर अमीर गरीब छोटा बड़ा मैंने सबको बुलाया, सब मेरी दावत में आए, तो मेरे दिल में ख्याल आ गया कि मालूमात करूं कि सब आए हैं या शहर में कोई रह भी गया। कहते मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के शहर की तरफ निकला, तो मैंने ना जब सब लोग मेरी दावत पे आए हुए थे, मैंने एक बूढ़े को जंगल में लकड़ियां काटते देखा। तो मैं उसके करीब गया, मैंने जाके बुजुर्गों आपको पता नहीं है कि आज तो हातम ताई ने सारे शहर की दावत पकाई है? तो कहने लगे बेटे पता है। तो मैंने कहा आप गए क्यों नहीं? तो कहते हैं अजीब लफ्ज कहे उस बूढ़े ने। कहने लगा बेटा मुझे ना अपने हाथों की कमाई खाने का चस्का लग गया है, मुझे ना ये जायका लग गया खुद कमा के खाने का, ये मुझे ये जायका लग गया। किसी के दस्तरखान पर मुझे ज्यादा लुत्फ नहीं, यूँ समझ लें कि मुफ्त की रोटी पर मुझे ज्यादा लज्जत, मेहमान नवाजी सुन्नत है, वो मामला अलग है, लेकिन हर वक्त मुफ्त खोरी के प्रोग्राम पे रहना का, मुझे वो मुफ्त खोरी के दस्तरखान पे लज्जत नहीं आती, मुझे जायका लग गया। हातम ताई कहते हैं मैं कुर्बान होने को गया उस शख्स के
تو میں اپنا گھوڑا موڑ کے جب آنے لگا تو اس نے آواز دی, کہنے لگا بیٹا دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا ذرا ایک چھوٹا سا کام کر دو گے؟ میں نے کہا کر دوں گا. تو اس نے مجھے 5 دینار دیے. کہنے لگا جب جاؤ نا دعوت پہ تو وہاں جو آدمی کھانا پکا رہا ہو نا, لنگر پکا رہا ہو, اسے میرے 5 دینار دے دینا. حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں ہے میرے پیسوں کی, لیکن وہاں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہوں گے, چلو میرا بھی تھوڑا سا حصہ ڈل جائے گا. میں چاہتا ہوں خیر کے کام میں. تو حاتم تائی کہتے میں چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترا اور نقاب چہرے سے اتار کے کہا بابا ذرا سینے سے تو لگ, میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں یار, تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. تو مزہ آ گیا کسی سخی سے ملا ہوں, تو مجھ سے زیادہ سخی, غریب ہو کر اتنی سخاوت. خودداری, عزت نفس, وقار آدمی کو بڑا کر دیتا ہے. کئی مالداروں کی سخاوت چھپ جاتی ہے غریبوں کی سخاوت کے آگے. لیکن میرے عزیز یاد رکھیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکان پر تیل لینے گئے, سرسوں کا تیل لینے گئے. دکاندار کو تیل کی بوتل دی, کہا یہ ذرا نا تیل کی بھر دو. اس نے بھر کے دی تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم ہیں, آپ 3 آنے دے دیں. تو اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا تو سارے رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار آئے نہ نہیں. خبردار, عزت نفس, وقار, یہ حسن ہے انسانی زندگی کا. اس سے انسان بڑا ہوتا ہے, اس سے اس کا قد بڑھتا ہے, اس سے معاشرے کے اندر خود سے جینے کا رواج پیدا ہوتا ہے. اس سے لوگ سہارے ڈھونڈنے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے نوجوان سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ امریکہ میں جو رشتہ دار رہتے ہیں وہ کبھی مجھ پہ مہربان ہو جائے نا اور وہ مجھے وہی لے جائیں. وہ جو میرے یورپ کے مالدار عزیز ہیں, کبھی وہ میرے اوپر نظر کرم کرے تو بات بن جائے. دنیا داروں سے, مالداروں سے لوگ تعلق بنانا چاہتے ہیں صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے. یہ نہ کریں, یہ درست نہیں ہے. اس مالک سے رشتہ جوڑیں جو جس کو دیتا ہے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرماتا ہے, اور جس کو دیتا ہے پھر اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے, اور دیتا ہے تو دے کر احسان نہیں جتلاتا. میرے بھائی کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے نظریات پیدا نہ کریں. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کرتے کرتے جب طواف سے فارغ ہوئے تو وقت کا حکمران امیر مکہ آ گیا. بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت فارغ ہوئے نا جب 8ویں استلام سے, 2 نفل پڑے طواف کے, تو آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضور السلام علیکم فرمایا. وعلیکم السلام. کہنے لگا جناب میں مکے کا امیر ہوں, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا, کوئی حکم ہو تو. یہ دنیا دار سمجھتے ہیں نا کہ ہر پیر کو, ہر عالم کو, ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے. معاذ اللہ, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت سالم بن عبداللہ نے اس کی یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے, غصہ فرمانے لگے یار تجھے کس نے امیر مکہ بنا دیا, تجھے اتنا بھی شعور نہیں. میں اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں گا, یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے سوال کروں گا. تجھے یہ شعور نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اور پھر اپنے رب کریم کے دروازہ کرم کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں بھی دنیا داروں سے مانگوں. نے دیکھا نہیں لوگ مسجدوں میں آ کے بھی لوگوں سے مانگتے, اللہ کے گھر میں بھی آ کے لوگوں سے مانگ رہے. کہا تو کیسا بیوقوف. پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کے واپس لوٹ گیا. جب باہر نکل گیا نا بیت اللہ مسجد الحرام سے باہر نکل گیا تو باہر نکل کر کے حضرت سالم بن عبداللہ کا انتظار کرنے لگا. آپ فارغ ہو کے باہر نکلے تو پھر دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا حضور اب تو بیت اللہ شریف سامنے نہیں ہے, اب تو حجر اسود کے ہم سامنے نہیں کھڑے, اب تو ہم مقام ملتزم کے قریب نہیں ہے, تو حضور ابھی بتا دیں کوئی حکم ہو تو. حضرت سالم بن عبداللہ اب مسکرائے اور فرمانے لگے چل یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں, تو جو دینا چاہتا ہے تو کیا مانگوں. کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. تو آپ فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں, کرم ہی مانگتا ہوں. یہی کہتا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے دے دے. میں تو کبھی, تو کیا سمجھتا ہے میں سجدوں میں بھی رب سے دنیا کی دولت کا سوال کرتا ہوں. اور میں جا
अर्श के मालिक से मैं जब फजल मांगता हूँ जिसने दुनिया बनाई है, तो तेरे जैसे आदमी से मांगूंगा। कभी इन चक्करों में न पड़े मेरे भाई, खुददारी से रहे, उसी से मांगे जो देता है तो फिर बेइंतहाई देता है, उस महबूब से मांगे जो देते हैं तो फिर करम हो जाता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो दरवाज़ा करम था कि जहाँ से जो आता था हुजूर उसे झोली भर के अता करते, जो आता था उसे झोली भर के दिया जाता था। लेकिन आपको सियासता में एक रवायत ऐसी भी मिलेगी कि एक सहाबी ने आके कहा था, या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे पास कुछ नहीं। ये गौर का मकाम है, इस पर तवज्जो फरमाए। कितनी इन्वेस्टमेंट से कारोबार करना चाहिए, रासुल माल कितना हो। लोग कहते शायद करोड़ों हो तो मेहनत स्टार्ट होती है। सहाबी ने कहा, हुजूर कुछ दीजिए। और ये उस जगह से मांगा है जहाँ से जिसको भी मिलता है बेहिसाबो किताब भी मिलता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा न। या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। फरमाया, तेरे पास कुछ नहीं। कहा, हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है ओढ़ने का। फरमाया, लेके आओ। वो दोनों चीजें लेके आए और ला के हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन खरीदेगा भाई एक ही कंबल? कोई ऐसा गरीब भी आज है जिसके घर में एक ही कंबल हो? कोई ऐसा गरीब भी है जिसके यहाँ एक ही प्याला हो? कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मैं 1 दिनार में लूंगा। दूसरे ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने बेच दिया, यानी जो था वो भी बेच दिया। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उसको 2 दिनार दिए। फरमाया, जा 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, था बड़ा खुश नसीब। जब कुलाड़ा लेके आया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया और फरमाया, जाके जंगल से लकड़ियां काट और बेच। गोया खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, पहन भी और पहना भी, दूसरों का भी भला कर। जाके जंगल में लकड़ियां काट और 15 दिन मुझे नजर ना आना। 15 दिन के वो बाद आए तो कहा, अब क्या हाल है? कहा, या रसूलल्लाह पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। और एक रवायत यूं भी मिलती है कि 10 दिनार जेब से निकाल के पेश किए। का, या रसूलल्लाह ये साहब सुफा के लिए रख दे, मेरा हिस्सा पड़ जाएगा। गैरत के साथ, खुददारी के साथ मेहनत की आदत डालें, जद्दोजहद की आदत डालें, रिज़्क़े हलाल की तरफ सफर करें। कोशिश फरमाएं कि तगो दो मेहनत के लिए बढ़ जाए, लालच नहीं करें। दूसरों की जेबों पर नजर ना डालें। कभी भी ये ख्याल ना करें कि कोई दुनियादार आएगा और उससे हमारा रिश्ता कायम होगा तो हमें नवाज जाएगा। ये सारे सहारे आपको कमजोर कर देंगे। ये सारे सहारे लोगों के दिलों से गैरत छीन के ले जाते हैं। ये सारे सहारे तो हैं, ये रुसवाइयां देते हैं, ये कमजोर करते हैं। अंदर की गैरत लोगों की इससे बहुत ज्यादा शिकस्ता हो जाती, हालात बिगड़ते। मेरे भाई, खुददारी, वकार, इज्जत नफ्स, खुद से जीना, आगे बढ़ना और इस तरह का रवैया रखना कि जिससे जो है इंसान को कभी भी ऐसा ना लगे कि मैं किसी पर बोझ हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने सहाबा को जद्दोजहद सिखाई, काम करना सिखाया, हिम्मत करनी सिखाई, आगे बढ़ना सिखाया। खुददारी के साथ जब लोग जीते हैं, खुददारी उनको बावकार कर देती, उनको बाहौसला कर देती, उनको नवाज देती है। खुददारी एक ऐसा फेल है जो आदमी को बड़ा करती है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों को आप देखें, वो मेहनत करते थे, वो जद्दोजहद करते थे, वो एक दूसरे का सहारा बनते, सुबह से शाम तक कोशिशें करते, जद्दोजहद करते और उसके साथ वो अपने शब व रोज की जिंदगी के मामलात चलाते, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मेहनत का आदी बनाए। आपको दुनिया में जितने भी बड़े लोग मिलेंगे जो किसी गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, ये किसी छोटे से गांव से इनका रिश्ता था। फिर उन्होंने जद्दोजहद की, फिर इन्होंने कोशिश करनी शुरू की, फिर इन्होंने मेहनत करनी शुरू की, फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बरकतें अता फरमाई। हजरत औफ बिन मालिक अशजई रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग बैत करने के लिए हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात पर भी बैत किया, किसी का शरीक नहीं ठहराएंगे। ये भी वादा लिया कि मेरी रिसालत का इकरार करेंगे, ये भी वादा लिया कि नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे। फरमाते मैं हैरान हो गया कि हुजूर ने उन लोगों से हाथ पे हाथ रख के ये वादा लिया कि मुझसे वादा करो तुम जिंदगी में किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओ, तुम कभी किसी से सवाल नहीं करो, तुम कभी भी किसी शख्स के आगे गिड़गिड़ाओगे नहीं। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा,
तुम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे महसूस हो कि ये मांगने वाले हैं। कशकोल उठा करके दुनिया में भागते रहना और हमेशा यही सोचना कि किसी तरीके से किसी का माल मेरे पास आ जाए। माल तेरे लिए वही अच्छा है जो अल्लाह तुझे अता करे, जो मालिक तुझे तेरे घर से नवाज दे, वही तेरे लिए अच्छा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के ढेर सारे सहाबा खेती बाड़ी करते थे, ढेर सारे लोग तिजारत करते। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत करते, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मेहनत करते। जब लोग आए ना मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को दूसरे का भाई बना दिया, एक का दूसरे से ताल्लुक बना दिया। और वो एसार की बड़ी आला मिसाल है कि लोगों ने अपनी जायदादें भी बांट के दे दी, अपने बागात भी दे दिए, अपने माल भी दे दिए, अपने मकानात भी दे दिए। तो सहाबाए किराम आसूदगी से रहने लगे। एक शख्स को नबी पाक ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का भाई भी बनाया। लेकिन जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े खुददार थे, सब तमाम सहाबाए खुददार थे, लेकिन इस पहलू में, इस अंदाज में उनका रवैया ये था कि अपने भाई से कहने लगे, उन्होंने कहा मैं अपना आधा माल भी देता हूँ, घर भी देता हूँ। फरमाने लगे माल भी तो रख, तेरा मेरा एक ही है, जायदाद भी तो रख, मुझे तू ये बता मंडी किस तरफ है, तू मुझे बता बाजार किधर है, मैं जाऊंगा, तिजारत करूंगा, कोशिश करूंगा, हिम्मत करूंगा और कमा करके लाऊंगा और इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कि अल्लाह की रज़ा के लिए जब मैं निकला करता था तो फिर मेरा मालिक मिट्टी को भी सोना बना दिया करता था, फिर मुझे अल्लाह देता था, रब करीम फिर नवाजता था। इसलिए कोशिश फरमाएं, हिम्मत करें, जद्दोजहद करें, लेकिन किसी की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है। उस मालिक की तरफ क्यों ना देखें जिसके खजाने भरे हुए हैं, उसके महबूब का वसीला लेके उसकी बारगाह में क्यों ना जाएं, जो जब नवाजता है तो इतना नवाजता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती ये मुझे कहाँ कहाँ से मिल रहा है और किस किस अंदाज में मिल रहा है। और आपने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया होगा कि कई दफ़ा आप उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ से मुझे बड़ा कुछ आएगा, लेकिन वहाँ से सिफर और माइनस सिफर ही मिलता है और कहीं से आपका बिल्कुल ख्याल नहीं होता। लेकिन रब करीम आपको झोली भर के अता करता है, अल्लाह नवाज देता है। तो माना यह है कि देने वाला अल्लाह है, अल्लाह अता करता है अपने बंदों को, उसकी अता पर नजर करें ताकि उसकी अता हमें नवाजे, उसके करीब जाए। मेरे अजीज दोस्तों, एक तो ये कि खुद हमने खुददार रहना है और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है वो ये है कि आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को, इनको आदी बनाए मुशक्क़त करने का, कोशिश करने का, इनको ये जहन दे, इनको कभी भी शहजादगी की तरफ माइल ना करें। ये जहन दे इन्हें कि इन्होंने मेहनत करनी है, इन्होंने जद्दोजहद करनी है, इन्होंने कोशिश करनी है। इनके दिलों में ये बात उतार दे, सुबह इन्हें वक्त पर उठाएं और इन्हें सारे दिन के मामलात मैनेज करके दें। फिर देखें अल्लाह ताला मिल्लत के लिए, मज़हब के लिए, कौम के लिए इन बच्चों को कितना बड़ा सरमाया बनाता है और ये कितनी बड़ी हमारी दौलत बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावा।